Good morning. Let us start from where we have stopped in our yesterday's class. How do these traits get expressed? How does the mechanism or hereditary work? Cellular DNA is the information source for making the proteins in the cell. तो सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाना है वो इंफॉर्मेशन वो ऑर्डर वो डीएनए देता है हमारा. A section of DNA that provides the information for one protein is called the gene for that protein. तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि भाई गद्दारी करना हमारे जीन्स में नहीं है, झूठ बोलना हमारे जीन्स में नहीं है. तो वो जीन जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की जो हमारी बॉडी में उस तरह के प्रोटीन जनरेट करने के लिए जवाबदार होते हैं, है ना. So how do proteins control the characteristics that we are discussing here? तो डीएनए जो है वो एक इंफॉर्मेशन है, रूल है, राइट, जिसको हम जीन्स बोलते हैं, राइट, और वो प्रोटीन उस तरह का बनाने के लिए ज़िम्मेदार है. तो किस तरह के प्रोटीन बनेंगे, किस तरह के प्रोटीन कंट्रोल होते हैं, हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर. जैसे कि हाइट बढ़ाना, हाइट छोटी होना, सीड्स का गोल होना या व्रिंकल्ड होना. ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमें अभी सिर्फ बात करनी है टॉलनेस की. तो we know that the plants have hormones that can trigger the growth. Plants' height can thus depend on the amount of particular plant hormone. The amount of the plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it. Consider now an enzyme that is important for this process. If this enzyme works efficiently, a lot of hormones will be made and the plant will be tall. If the gene for that enzyme has an alteration that makes the enzyme less efficient, the amount of hormone will be less and the plant will be short. Thus, genes control characteristics or the traits. तो जीन्स जो होते हैं राइट, जिसका अभी हम बोलते हैं ना कि देशभक्ति तो उसके खून में है, मतलब उसके खून में मतलब उसके बाप दादा जो थे वो देशभक्त थे, लड़ाई में गए थे. तो ऐसे हम बोलते हैं ना कि भाई जैसा हमारे पूर्वज होंगे वैसे ही आगे हमारी नस्ल बढ़ती जाती है ना. तो प्लांट की हाइट जो होती है वो एक हार्मोन के ऊपर डिपेंड होती है. हार्मोन जो होता है वो एंजाइम में जनरेट होता है, राइट, और एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. और एंजाइम को डीएनए मटेरियल जो जीन्स देंगे उसके ऊपर से पता चलेगा कि कितनी हाइट बढ़ानी है प्लांट की, कितनी हाइट कम रखनी है, राइट. If the interpretations of Mendelian experiment we have been discussing are correct, अगर मेंडेलियन का डिस्कशन करेक्ट माना जाता है एक्सपेरिमेंट्स को, then both the parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction. तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मदर एंड फादर बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ आर रिक्वायर्ड, राइट. तो जितना रिस्पॉन्सिबल यानी कि फादर है उतने ही मदर रिस्पॉन्सिबल है. तो जितना फादर कंट्रीब्यूट करता है उतना ही मदर कंट्रीब्यूट करती है. तो चाइल्ड के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, है ना. फिर आगे हमने जैसे पढ़ा था कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, तो वो उसके हिसाब से फिर शो होने लगेगा, राइट. Both the parents must be contributing a copy of the same gene. This means that each pea plant must have
two sets of all the genes, one inherited from each parent. For this mechanism to work, each germ cell must have only one gene set. How do germ cells make a single set of genes from the normal two copies that all other cells in the body have? If progeny plants inherited a single whole gene set from each parent, then the experiment explained in figure 9.5 cannot work. This is because the two characteristics R and Y would be linked to each other and cannot be independently inherited. This is explained by the fact that each gene set is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces, each called a chromosome. Thus, each cell will have two copies of each chromosomes, one each from the male and female parents. Every germ cell will take one chromosome from each pair, and this may be either maternal or paternal origin. When two germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in a progeny, ensuring the stability of the DNA of the species. Such mechanism of inheritance explains the result of this is explained by the fact that each gene set is present not a single thus each cell will have two copies of each chromosome, one each from the male and the female parent. So every germ cell will take one chromosome from each pair, and this may be either maternal or the paternal origin. When two germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species. Such a mechanism of inheritance explains the result of the Mendel experiments and is used by all the sexually reproducing organisms. But asexually reproducing organisms also follow the similar rules for inheritance. Now, can we work out how their inheritance might work? तो जो हमारे प्रोटीन्स बनाने की बॉडी को जो इंफॉर्मेशन जो ऑर्डर मिलता है वो हमको मिलता है डीएनए मटेरियल से. अब डीएनए मटेरियल आया कहाँ से हमारे अंदर कि बोथ मदर एंड फादर आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर इक्वली मौजूद आते हैं. अभी कोई कैरेक्टर्स जो होता है वो डोमिनेंट होता है और कोई जो होता है वो रिसेसिव होता है. तो अगर हमारा डीएनए जो कॉपी हुआ उसमें से एक पार्ट जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है ना, तो रिसेसिव वाला तो दिखेगा नहीं, डोमिनेंट का कैरेक्टर है वो दिखेगा. तो कौन सा कॉपी होता है, राइट, वो हमारे जो डीएनए मटेरियल कॉपी होता है ना, वो सेम टू सेम कॉपी नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें छूट ही जाता है. जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आप एग्ज़ाम लिखने बैठे हो, राइट, आपका आंसर जो है राइट और आधा आपने लिख लिया, फिर आपको याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ वहाँ देख रहे थे और आपके बाजू में जो आपकी फ्रेंड बैठी है उसका आंसर शीट आपको दिख रहा है आराम से. तो आप क्या करोगे कि पूरे का पूरा उसमें से देखते देखते लिखते जाओगे. अभी आधा आंसर तो आपका खुद का है, आपने लिखा हुआ है, और आधा आपने वहाँ से कॉपी करके लिखा. तो फाइनल आंसर जो तुम्हारा बना वो क्या उसके जैसा एक्चुअली उसके जैसा होगा? नहीं होगा. मान लो कि आधा आपने नहीं लिखा, डायरेक्टली उसी में से कॉपी किया है आपने, है ना,
तो कभी कभी टीचर्स राउंड पे होते हैं या आपकी फ्रेंड दूसरा आंसर लिख रही है तो आपका वो आंसर रह जाएगा, मतलब एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी आंसर आप नहीं कर पाओगे। तो सेम हमारे बॉडी में भी होता है कि जो पेरेंट के डीएनए जो होते हैं हमारे अंदर वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं हो पाते हैं, इसीलिए तो स्पीशी वेरिएशन आता है हमारे अंदर कि भले हाथ पैर के स्ट्रक्चर जो है हमारा वो पेरेंट के जैसा आएगा, लेकिन उसके जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आंखें ब्राउन, आंखों का कलर ब्राउन होना, तो मम्मी का अगर आंखों का कलर ब्राउन है, डैडी का आंखों का कलर ब्लैक है, तो जो रिसेसिव होगा है ना वो सप्रेस हो जाएगा और जो डोमिनेंट होगा वो कैरेक्टर आ जाएगा। तो मान लो आंखों का कलर है ना, वो डीएनए चेक करेगा किसका कैरेक्टर आया है डोमिनेंट, तो मम्मी का अगर आया है तो मम्मी की आंख अगर ब्राउन है तो न्यू बॉर्न बेबी की आंखें भी ब्राउन होगी। अगर डैडी का क्रोमोसोम कॉपी हुआ है, राइट, तो डैडी की आंख का कलर क्या है, ब्लैक है, तो न्यू बॉर्न बेबी की आंख का कलर भी ब्लैक होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी कभी लाखों करोड़ों में एक ऐसा हो जाता है कि दो आँखों में, हमारी दो आँखें होती ना, एक आँख हमारी ब्लैक हो गई डैडी के जैसी और दूसरी आँख हमारी मम्मी के जैसी ब्राउन कलर की हो गई। लेकिन ऐसा लाखों करोड़ों में एक बार ऐसा कॉपी हो जाता है, वरना जनरली या तो मम्मी की आँख का कलर आएगा या तो डैडी की आँख का कलर आएगा। तो कौन से कैरेक्टर्स हमारे अंदर आएंगे वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, राइट जिसकी वजह से हमको सेपरेशंस दिखता है। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, तो आगे मेंडलीफ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या किया था कि भाई एक राउंड शेप का बीज लिया और उसका कलर येलो लिया, है ना। दूसरा एक व्रिंकल्ड शेप सीड लिया, उसका कलर ग्रीन लिया था। अभी इन दोनों को जब आप क्रॉस करोगे, है ना, नए छोड़ उसमें से उगाने की कोशिश करोगे, तो हमारे पास क्या क्या संभावना रहेगी, 4 प्रकार की संभावना रहेगी हमारे पास। कि या तो फर्स्ट प्रोजेनी जो होगी वो कैसी होगी कि राउंड हो सकते हैं और कलर येलो होगा एग्जैक्टली पेरेंट के जैसा। दूसरा राउंड होगा लेकिन कलर ग्रीन होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, ग्रीन होगा और राउंड होगा। और चौथा क्या होगा, ग्रीन होगा और व्रिंकल्ड होगा। तो ये फिर जो हुए, है ना, फर्स्ट जनरेशन जो हुआ उसमें से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं, जहाँ जहाँ कैपिटल आर आता है, राइट, तो राउंड शेप के सीड्स बनेंगे उसके। जहाँ पर स्मॉल आर आता है तो व्रिंकल शेप के बनेंगे, है ना। फिर उसको आगे जब आप करोगे तो उसकी और संभावना बढ़ जाएगी, राइट। फिर जहाँ कैपिटल आर आएगा वो आप क्रॉस टेबल में ऊपर देखें ना, यहाँ पर सी दिस वन, राइट। तो ग्रीन कलर के सीड्स फर्स्ट जनरेशन ग्रीन, राइट, और फिर उसके अलग अलग प्रोजेनी किए गए, राइट। तो टोटल नंबर हमको क्या मिलते हैं, 9:3:3:1, टोटल 16 हमको ऐसे मिलेंगे कि राउंड भी होंगे, येलो भी होंगे, राउंड भी होंगे और ग्रीन भी होंगे, राइट। सो 315 राउंड शेप एंड येलो, 108 राउंड थे और ग्रीन थे, तो और 101 जो थे वो व्रिंकल थे और येलो थे, और 32 जो थे वो व्रिंकल थे और ग्रीन थे। टोटल 556, और उनके प्रकार 16 प्रकार के हुए, है ना। सो लेट अस सी हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी देखो, आपको पता है कि जो सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होते हैं, है ना, तो एक मदर की ज़रूरत पड़ती है और एक फादर की ज़रूरत पड़ती है, और इन दोनों का ही बीज लिया जाएगा और उसमें से एक नया बेबी उत्पन्न होगा, राइट। अभी मम्मी का भी इक्वली डीएनए आता है, डैडी का भी इक्वली डीएनए आता है, तो न्यूबॉर्न बेबी जो होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा वो कैसे डिसाइड होगा, राइट। उसके बारे में है ये पूरा टॉपिक, राइट, सेक्स डिटर्मिनेशन। We have discussed the idea that the two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons.
हाउ इज़ द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड, तो कैसे डिटरमाइंड होगा कि लड़का होगा या लड़की होगा। डिफरेंट स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर दिस। Different species use very different strategies. Some rely entirely on the environmental clues. Thus, in some animals, like a few reptiles, the temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the animals developing in the eggs will be male or female. तो सबका अलग अलग स्पीसीज, जो भी स्पीसीज है उन सबका अलग अलग क्राइटेरिया है ना। से फॉर एग्ज़ाम्पल सांप ने अंडे दिए, है ना। अब अंडे में से या तो नाग निकलेगा या तो नागिन निकलेगी। अब क्या डिसाइड करेगा, नागिन बने कि नाग बनेगा। तो जो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो जहाँ पर रखा गया वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर हाई टेम्परेचर में वो सर्वाइव हो जाता है तो वो नाग बनेगा। अगर वहाँ का टेम्परेचर एकदम ठंडे जैसा है तो वो अंडे में से जो निकलेगी वो नागिन निकलेगी। ये एग्जाम्पल है, राइट। Whether the animals developing in the eggs will be male or female, in other animals such as snails, individuals can change the sex, indicating that sex is not genetically determined. तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपना सेक्स चेंज भी कर सकते हैं, जैसे स्नेल की बात होती है यहाँ पर, राइट। सो हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है कि आजू बाजू का वातावरण काम नहीं करता। उसका जो डीएनए कॉपी हुआ है ना, जीन्स, वो डिसाइड करेगा, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिसाइड करेगा कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, राइट। फिर चाहे वो ठंडे वातावरण में भी हो या गर्म वातावरण में भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। In other words, the genes inherited from our parents decide whether we will be boys or girls. तो हम अगर लड़का बने हैं तो वो कौन सा कॉपी हुआ था हमारे पेरेंट में से जीन्स, उसके ऊपर डिसाइड करेगा, राइट। बट सो फार वी हैव एज्यूम्ड दैट सिमिलर जीन सेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। इफ दैट इज द केस, हाउ कैन द जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन द सेक्स। तो जब दोनों का इक्वली आता है हमारे अंदर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, राइट, तो कैसे पता चलेगा कि क्या न्यूबॉर्न बेबी होगा वो गर्ल होगा या बॉय होगा। तो यहाँ पर देखो, द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट द ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। Most human chromosomes have a material and a paternal copy, and we have 22 such pairs. But one pair, called the sex chromosomes, is odd in not always being a perfect pair. Women have perfect pair of sex chromosomes, both the called X, but men have the mismatched pair in which one is normal sized X while the other is short one called the Y. So women are XX while men are X and Y. Now, can we work out what the inheritance pattern of X and Y will be? राइट। तो हमारे अंदर जो गैमेट्स होते हैं, राइट, तो एक होता है एक्स, फीमेल का एक्स होता है वाई, और वाई होता है मेल का। तो जब दो ग्रुप बनेंगे, कौन से, यहाँ से भी एक्स आया, देखो यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो फर्स्ट एक्स और यहाँ से भी एक्स, राइट, एक वाई और यहाँ से भी एक्स, क्योंकि यहाँ तो गर्ल में दोनों एक्स ही होते हैं तो एक्स ही करेगी। जब मेल होता है उसमें एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो यहाँ एक्स, लेट मी क्लियर आउट ऑल दिस। तो फर्स्ट यहाँ पर एक्स आया इसका, और विमेन में से दो एक्स होते हैं तो यहाँ पर भी एक्स आया, ठीक है।
फिर यहाँ पर x आया इसमें से, और यहाँ से भी दूसरा x आया, यहाँ से y आया और यहाँ से x आया। तो x और y जहाँ बनेगा वहाँ पर मेल बनेगा, और जहाँ जहाँ डबल x बनेगा वहाँ पर फीमेल बनेगी, राइट। The explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired. Most human chromosomes have a maternal and a paternal copy, and we have 22 such pairs. But one pair called, तो बाकी के जो टोटल हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो हमेशा पेयर में होते हैं, है ना, जोड़ी में होते हैं। तो बाकी 22 जोड़ियाँ तो सेम टू सेम होती है, जो डिसाइड करती कि उसकी कितनी उंगलियाँ आएंगी, कितने नाक होंगे, कितनी आँखें होंगी, बाल कैसे होंगे, कान कैसे होंगे, सब डिसाइड करेंगे, राइट। तो 22 पेयर्स प्लस 1 46 होते हैं ना टोटल, तो 22 पेयर मतलब 44 हो गए। एक और पेयर चाहिए हमें, है ना, तब 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये वाली पेयर जो है 23rd पेयर जो है वो या तो डबल एक्स होगी या एक्स वाई होगी, ये दो संभावना है। तो डबल एक्स हुई तो लड़की होगी, और एक्स और वाई हुआ तो लड़का होगा, अंडरस्टूड। तो ये लास्ट वाली पेयर जो है वो हमारा सेक्स डिटरमाइन करती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। As figure 9.6 shows, half the children will be boys and half will be the girls. All children will inherit an X chromosome from their mother regardless of whether they are boys or girls. अभी बॉय हो या गर्ल हो, मदर में से तो उसको एक्स क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे। Thus, the sex of the children will be determined by what they inherited from their father. तो मदर में से तो दोनों एक्स ही हैं, है ना, तो एक्स ही आएगा, राइट। अभी फादर में से अगर वो एक्स, क्योंकि फादर के पास दो पॉसिबिलिटी है, एक्स भी दे सकता है और वाई भी दे सकता है। तो फादर ने अगर एक्स दिया, मदर का भी एक्स आया तो लड़की होगी। मम्मी ने तो एक्स दिया है दूसरा, फादर ने इस बार वाई दिया, तो इस बार क्या होगा, भाई होगा। तो पहले बहन हो गई फिर भाई हो गया। अगर फिर भी अगर वो लोग और अगेन प्रोजनी में जाते हैं तो इस बार अगर मम्मी एक्स देती है, क्योंकि मम्मी पास तो एक्स ही है हर बार देने के लिए, फादर ने इस बार अगर एक्स दिया, राइट, तो अगेन लड़की होगी, राइट। सो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है चाइल्ड का वो टोटली डिपेंड होता है फादर के ऊपर, कि फादर क्या डोनेट करता है क्रोमोसोम्स में से, राइट। लेकिन सैडली मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर जो है मान्यताएं बहुत सारी गलत होती हैं कि अगर किसी कपल को सिर्फ लड़कियां ही होती हैं तो लड़के के पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि अभी उसकी शादी दूसरी लड़की से करवाओ, राइट। तो हो सकता है कि वो लड़का पैदा करे, है ना। आजकल हमारे संतान यहाँ पर बहुत ऐसा होता है, कम मिसमैच होता है, लेकिन अब तो खैर वो निकल गया है, लड़की हो या लड़का हो वो था इक्वल, राइट। सो जो रीज़न है जिसके पीछे, है ना, लड़की हो या लड़का हो, तो मेन कारण जो होता है वो होता है फादर होता है, मदर नहीं होती, क्योंकि मदर के पास तो ऑलरेडी देने के लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, एक्स देने के लिए। फादर के पास दो ऑप्शंस होते हैं देने के लिए, या तो एक्स देगा या वाई देगा। अगर एक्स दिया तो लड़की होगी और वाई दिया तो लड़का होगा, राइट। And one who inherits a Y chromosomes from him will be a boy, right। ये वाला नेक्स्ट इवोल्यूशन एंड इलस्ट्रेशन, राइट, ये हम कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।